Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we have to discuss about pair production. It is the third type of interaction of radiations with matter. We have already discussed about photoelectric effect and Compton effect. Photoelectric effect is a low energy phenomena. Compton effect is a medium energy phenomena, and pair production is high energy phenomena. So today we have to discuss about pair production, that is when a very high energy photon, that is gamma ray photon. Gamma ray photon is the highest energetic photon in the electromagnetic spectrum. When a gamma ray photon interacts with matter, then a pair of electron and positron is produced. So first of all, we define pair production. What is pair production? When a high energy photon, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक पेयर प्रोड्यूस होगा. किसकी वजह से? इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से. When a high energy photon pass near heavy nucleus, it is converted into a pair of electron and positron, that is known as pair production. ठीक है, इस फिगर में देखें, ये एक हैवी न्यूक्लियस है, ये फोटॉन का सिंबल है. फोटॉन को हमने इंसिडेंट किया और इस पे न्यूक्लियस के करीब से ये गुजरेगा है, बहुत पास से. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक पेयर प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का. फोटॉन अब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनेगा. इनफैक्ट हम इसको कहते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. यानी फोटॉन के पास क्या थी? एनर्जी थी. एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, यानी मैटर में कन्वर्ट हो गई है. किस तरह से होती है ये देखें. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है ऐसे हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस. ये एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी एटम है, सेंटर में है इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. And outside the nucleus in fixed orbits, these are the electrons. Electrons are present in this heavy atom, and when a photon pass near this nucleus, then a pair of electron and positron is produced. Just like this, a photon is incident, and as a result a photon is incident, and as a result a pair of electron and positron is produced. ये देखें, फोटोन इसके पास से गुजरा है और ये दो प्रोट बन गए इसमें पे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जिसे है इस तरह से हम कहते हैं. ये देखें, इस तरह से होगा. फोटोन इंसिडेंट हुआ और एक पेयर बन गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का. ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमने क्या कहा है, ये इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का. The phenomenon of pair production is also known as materialization of energy. According to Einstein's mass energy relation, E is equal to mc square. Mass and energy are interconvertible. Here in this case, high energy gamma ray photon, gamma ray photon क्या है? एनर्जी है, is converted to matter, that is a pair of electron and positron. What is positron? Positron is known as anti-electron. It is the antiparticle of electron because it has same mass and charge but polarity is opposite. Magnitude of charge भी same है, mass भी same है. जितना इलेक्ट्रॉन का मैस है उतना ही पॉजिट्रॉन का मैस है. चार्ज की वैल्यू भी दोनों पे सेम है, लेकिन चार्ज की पोलैरिटी ऑपोजिट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो फिनोमिना है पेयर प्रोडक्शन का, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तीनों वैलिड रहते हैं. The phenomena of pair production, law of conservation of charge, energy and momentum remains valid. Pair production always take place in the vicinity of a heavy nucleus to recoil energy along original direction to conserve the momentum.
इट कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा, इसीलिए ये फिनोमिना इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस होता है कि जहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहाँ पे होगा फिनोमिना पेयर प्रोडक्शन का। कंडीशन पेयर प्रोडक्शन के लिए क्या है, ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हमारे पास m0c² और इसकी वैल्यू होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पुट करेंगे, c स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा जाउल में। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पे डिवाइड करके, तो हमारे पास आंसर कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये सेकंड स्टेप है, पॉजिट्रॉन आएगा। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू m0c² इज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2m0c²। दोनों की कंबाइंड एनर्जी कितनी हो गई है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Thus, pair production can take place if energy of photon is greater than or equal to 1.02 mega electron volt. अगर एनर्जी इससे कम होगी, कम एनर्जी का फोटोन होगा, तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। ये कंडीशन है कि एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है, पूरी एनर्जी है फोटोन के पास, पूरी उतनी ही एनर्जी है जितनी एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाने के लिए चाहिए। तो उस सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर तो बनेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रेस्ट पे होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड positron. So energy of photon is equal to energy required for pair production plus kinetic energy of electron and kinetic energy of positron. Energy of photon को हम hf से represent करते हैं and it will be equal to 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। और अगर ऐसा है कि फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो ये दोनों फैक्टर यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों की ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ये ग्रेटर होगी तो रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। फिर ये देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मूव करेंगे, के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, टू कंजर्व टोटल मोमेंटम। हमने ये कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज एंड मोमेंटम इन केस ऑफ पेयर प्रोडक्शन वैलिड रहता है।